ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا آپ ایسے شخص ہیں جو روزانہ یا اکثر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا، پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مایوسی دور نہیں ہو رہی، گناہ کی طرف جھکاؤ کم نہیں ہو رہا، دل کو سکون نہیں مل رہا؟ اگر یہ بات آپ کی زندگی سے ملتی ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا ہوگا، اور اس ایک بات کو سمجھنے کے بعد آپ کبھی قرآن کے ساتھ پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ سکیں گے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایسا عملی طریقہ بتاؤں گا جسے آپ کل سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ موضوع یہ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں تاکہ آپ کی زندگی حقیقی طور پر بدل جائے۔ لیکن اس سوال کے جواب تک جانے سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے میں قرآن پڑھنے کے بارے میں جو ایک بڑا تنازع ہے اسے پہلے واضح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ الجھن دور کیے بغیر باقی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے کے بارے میں 3 گروہ ہیں؟ پہلا گروہ کہتا ہے صرف عربی میں پڑھو، معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ عربی الفاظ میں برکت ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے صرف ترجمہ پڑھ لو، عربی نہ بھی آتی ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ ترجمہ پڑھنا بدعت یا خطرناک ہے کیونکہ عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان تینوں رائے کے درمیان عام انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو صحیح راستہ کون سا ہے؟ آئیے سیدھا قرآن اور حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی سورہ صاد کی آیت 29 میں فرماتے ہیں، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں، یعنی گہرائی سے سوچیں اور سمجھیں۔ صرف زبان سے پڑھنے کا نہیں فرمایا، سوچنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ تو کیا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہی اللہ کا حکم ہے، اور سورہ محمد کی آیت 24 میں اللہ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی ذی قلوب اقفالھا، یعنی کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور جو غور نہیں کرتا اس کے دل پر تالے لگے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں، اگر ہم عربی معنی سمجھے بغیر صرف الفاظ پڑھیں تو کیا ہم واقعی قرآن پر غور کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، عربی میں پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ ترمذی شریف۔ تو عربی میں پڑھنے سے نیکی ملتی ہے، یہ یقینی ہے، لیکن کیا صرف نیکی حاصل کرنا ہی قرآن نازل ہونے کا مقصد تھا؟ نہیں، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، رہنمائی کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے۔ لہٰذا صحیح راستہ یہ ہے کہ عربی میں نیکی کے لیے پڑھیں اور ساتھ ساتھ معنی سمجھیں دل کی تبدیلی کے لیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں، معنی سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن سمجھنے سے زندگی میں اصل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آئیے مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ اپنی اصل پہچان دریافت کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں انسان جس سب سے بڑے بحران کا شکار ہے وہ شناخت کا بحران ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں تم کون ہو تو وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، یا میں بزنس مین ہوں، یا میں طالب علم ہوں، لیکن یہ اس کی اصل پہچان نہیں ہے۔ یہ پیشے ہیں، کردار ہیں، سماجی حیثیت ہے۔ انسان کی اصل پہچان کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت 56 میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ایک انسان اس آیت کا گہرا مطلب دل سے محسوس کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں اس کا آنا کوئی حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ پھر اس کی نوکری صرف تنخواہ کے لیے نہیں رہتی، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا خاندان صرف سماجی تعلق نہیں رہتا، وہ اللہ کی امانت بن جاتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ بامقصد ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ صبح اٹھ کر جان لیں کہ آج کا ہر عمل اللہ کے سامنے حساب کا حصہ ہے، تو کیا آپ پہلے کی طرح رشوت لے سکیں گے؟ پہلے کی طرح جھوٹ بول سکیں گے؟ پہلے کی طرح لوگوں کا حق مار سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔
क्योंकि जब पहचान बदलती है तो रवैया भी बदल जाता है। दूसरी तब्दीली ये है कि आपके दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। आज की दुनिया में लोगों की ज़ाहिरी खुशहाली बढ़ गई है, लेकिन ज़हनी बेचैनी भी बढ़ गई है। स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तफरीह है, लेकिन रात के वक्त तन्हाई के अंधेरे में हजारों लोग रोते हैं। परेशानी, मायूसी, मुस्तकबिल का खौफ, माजी का पछतावा। इस हालत में कुरान क्या कहता है? सूरह इसरा की आयत 82 में अल्लाह फरमाते हैं, हमने कुरान में ऐसी चीज़ नाजिल की है जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। ये शिफा सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए नहीं, ये शिफा दिल की बीमारियों के लिए भी है। जब एक इंसान जान लेता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, उसका हर दुख जानता है, उसके हर आंसू को देख रहा है और उसके लिए बेहतरीन फैसला कर रहा है, तो दिल में एक अजीब सुकून आता है। सूरह रात की आयत 28 में अल्लाह फरमाते हैं, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब ये आयत समझ में आती है तो इंसान समझ जाता है कि सुकून की असल जगह कहाँ है। सुकून किसी ब्रांड में नहीं, किसी तफरीह में नहीं, किसी दौलत में नहीं, सुकून अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। तीसरी तब्दीली ये है कि आपके फैसले करने की सलाहियत मजबूत हो जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को फैसले करने पड़ते हैं। किससे शादी करनी है, कहाँ नौकरी करनी है, किसके साथ कारोबार करना है, किस पर भरोसा करना है। अगर ये फैसले गलत हो जाएं तो सालों तक तकलीफ होती है। कुरान यहाँ क्या कहता है? कुरान हमें हलाल और हराम का फ़र्क सिखाता है, हक और बातिल का फ़र्क सिखाता है, सच और झूठ का फ़र्क सिखाता है। जो शख्स कुरान की ये तालीमें दिल में रखता है वो किसी भी लालच के सामने आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि उसके पास एक वाज़ेह मेयार होता है। वो जानता है कि ये फैसला अल्लाह को पसंद आएगा या नहीं। चौथी तब्दीली ये है कि आप मुसीबत को नए अंदाज से देखना सीखते हैं। आम इंसान मुसीबत आने पर टूट जाता है, मायूस हो जाता है, अल्लाह को इल्ज़ाम देता है, लेकिन कुरान मुख्तलिफ सोच सिखाता है। सूरह बकरा की आयत 216 में अल्लाह फरमाते हैं, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। ज़रा सोचें, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जो नौकरी नहीं मिली वो बाद में बेहतर साबित हुई? जो रिश्ता टूट गया वो बाद में अच्छा निकला? जिस इम्तिहान में नाकामी हुई वो आपके लिए बेहतर रास्ता बना? हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। जब ये यकीन कुरान से आता है तो इंसान मुसीबत में नहीं टूटता। पांचवें तब्दीली ये है कि आपका किरदार बनता है। कुरान सिर्फ इल्म नहीं देता, इंसान बनाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि रसूल का अखलाक कैसा था। उन्होंने फरमाया कि उनका अखलाक कुरान था। मुस्लिम शरीफ। यही कुरान का सबसे बड़ा असर है। जब कुरान वाकई एक इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो वो नरम दिल, माफ करने वाला, साबिर, सच्चा और आजिज बन जाता है, क्योंकि कुरान उसे सिखाता है कि अल्लाह उसे हमेशा देख रहा है। अब इस सवाल की तरफ आते हैं जो बहुत से लोगों के जहन में होता है, लेकिन मैं अरबी नहीं जानता, मैं कुरान कैसे समझूं? ये एक बिल्कुल फितरी सवाल है और इसका जवाब बहुत आसान है। सबसे पहले उर्दू बंगाली तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ना शुरू करें। रोज़ाना सिर्फ 5 आयात पढ़ें, अरबी तिलावत करें, फिर तर्जुमा पढ़ें और थोड़ा गौर करें कि ये आयत मेरी ज़िंदगी पर कैसे लागू होती है। दूसरा, तफसीर की किताबें या मोतबर उलमा की तफसीर वीडियोज़ देखें। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो अरबी ज़बान सीखने की कोशिश करें। कम अज़ कम बुनियादी अरबी अल्फाज सीखने से भी कुरान के साथ ताल्लुक़ गहरा हो जाता है। चौथा, हर नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के माना जाने। अगर सिर्फ सूरह फातिहा और रोज़मर्रा की सूरतों के मानी समझ लें तो नमाज का एहसास ही बदल जाएगा। अब ज़रा रुकें और ख़ुद से सवाल करें, पिछले 1 महीने में क्या आपने कुरान मानी समझकर पढ़ा है? पिछले 1 हफ्ते में क्या कुरान की किसी आयत ने आपके दिल को छुआ है? अगर नहीं तो आज से शुरू करें, क्योंकि कुरान आपका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह चाहता है कि आप उसके कलाम के करीब जाएं। जब इंसान कुरान से दूर होता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, जिंदगी बेसिमत हो जाती है, गुनाह की तरफ रग़बत बढ़ जाती है, और जब वो कुरान की तरफ लौटता है तो दिल नरम हो जाता है, जिंदगी में रहनुमाई आती है, गुनाह छोड़ने की ताकत आती है। सहाबाए किराम की मिसाल देखें। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे शख्स थे
जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने सूरह तहस की चंद आयात सुने और उनका मतलब समझा, उसी दिन उनका दिल बदल गया। सिर्फ सुना नहीं, समझा, और समझने के बाद वो मुसलमान हो गए और बाद में इस्लाम के अजीम तरीन खुलफा में से एक बने। यही कुरान की ताकत है, ये समझने की ताकत है। आज के इस जदीद दौर में हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, लेकिन रोजाना सिर्फ 10 मिनट कुरान को समझकर पढ़ने का वक्त नहीं होता। क्या ये वाकई वक्त का मसला है या तरजीहात का मसला है? अगर हम अल्लाह की किताब को वो तरजीह देते जो उसे देनी चाहिए थी, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती, जरा सोचें। आएं, थोड़ा जज्बाती पहलू देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज रात दुनिया के लाखों लोग तन्हाई में तकलीफ उठाएंगे? कोई अपने दुख किसी को नहीं बता पा रहा, कोई मायूसी के अंधेरे में डूबा हुआ है, कोई इतना टूट चुका है कि उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो जानते कि अल्लाह फरमाते हैं, वलो अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तियत बिहिल आरज़ू, मतलब ये कुरान इतना ताकतवर है कि इससे पहाड़ भी हरकत कर सकते हैं। अगर वो जानते कि ये कुरान उनके दिल के पत्थर को भी पिघला सकता है, तो क्या वो इतने अकेले होते? नहीं होते। अब मैं बताता हूं आपको अब क्या करना है। आज रात सोने से पहले सूरह यासीन की पहली 10 आयात तर्जुमा के साथ पढ़ें। पढ़ते वक्त दिल में सोचें कि अल्लाह मुझे बराह रास्त क्या कह रहा है। कल से रोजाना सिर्फ 5 आयात मानी समझकर पढ़ें। एक छोटी सी कॉपी में लिखें कि आज कौन सी आयत मेरे दिल को छू गई। हर जुमा को सूरह कहफ तर्जुमा के साथ पढ़ें, क्योंकि इसमें जदीद इंसान के लिए बहुत अहम 4 किस्से और सबक हैं। और सबसे अहम बात, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों के माना जाने। जब नमाज में खड़े होकर समझेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, तो नमाज सिर्फ एक मामूल नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह के साथ हकीकी गुफ्तगू बन जाएगी। तो खुलासा ये है, कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ने की किताब नहीं, ये हिदायत की किताब है, जिंदगी बदलने की किताब है, दिल को रोशन करने की किताब है। अरबी में नेकी के लिए पढ़ें, माना समझें दिल की तब्दीली के लिए, अमल करें जिंदगी की तब्दीली के लिए। जब कुरान आपकी जिंदगी के मरकज में आएगा तो आपकी पहचान बदलेगी, आपका दिल बदलेगा, आपके फैसले बदलेंगे, आपका किरदार बदलेगा और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह तालीज़ हम सब को कुरान को समझने, उस पर अमल करने और कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके ख्याल में हम कुरान को वो वक्त नहीं देते जो उसे देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं और बताएं कि कुरान की कौन सी आयत ने आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला है।